Good morning, students. Hope you all are safe and fine. We were reading the chapter Grandpa Tickles a Tiger. In the chapter, we have read how the grandfather discovered the tiger cub Timothy, how he took care of him, about his friends Toto the monkey and the mongrel puppy. Also, we have read Timothy's favorite place at home was drawing room. When he was about 6 months old, he became less friendly. He became a threat for everyone at home. So grandfather decided to send Timothy to a zoo at Lucknow. But after 6 months later, when grandparents visited Lucknow, then grandfather went to a zoo to see Timothy how he was getting on. This time Timothy became a full grown retriever. Grandfather was very happy. So today we will start reading from page number 32. He licked grandfather's hands and only sprang away when a leopard in the next cage snarled at him. Grandfather shooed the leopard away and the tiger returned to lick his hands. But every now and then the leopard would rush at the bars and the tiger would slink back to his corner. At the zoo, Tiger came near the grandfather and he started licking his hands. Licking his hands means pass the tongue over something. लेकिन टाइगर डर के मारे भाग जाता था जब भी वो लेपर्ड उसके केज में आता था उसको डराने के लिए. ग्रैंडफादर उसको भगा देते थे और टाइगर फिर से ग्रैंडफादर के हाथ को लिकिंग करना स्टार्ट कर देता था. फिर भी वो लेपर्ड उसको परेशान करने के लिए फिर से आ जाता था और जो टाइगर था वो डर के मारे पीछे कॉर्नर में चला जाता था. A number of people had gathered to watch the reunion when a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing. नंबर ऑफ पीपल वहाँ पे गैदर इकट्ठे होने स्टार्ट हो गए और वो उनका रीयूनियन देख रहे थे, दोबारा मिलना देख रहे थे. बट तभी वहाँ पे एक कीपर आया, एक गार्ड आया और उसने सबको पीछे हटाते हुए ग्रैंडफादर से पूछा कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है. आई एम टॉकिंग टू तिमथी सेड ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर उसको क्या कहता है कि मैं अपने तिमथी से बात कर रहा हूँ. Were not you here when I gave him to the zoo 6 months ago? वो ग्रैंडफादर कीपर से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे नहीं थे जब मैंने तिमथी को यहाँ पे छोड़ा था. वो गार्ड था, कीपर था, उसने क्या रिप्लाई दिया? He said, I have not been here very long. मैं यहाँ से बहुत लंबे समय से नहीं था. Please continue your conversation. But I have never been able to touch him myself. He is always very bad tempered. तो जो कीपर था वो ग्रैंडफादर को क्या बताता है कि मैं यहाँ पे बहुत लंबे समय से नहीं था, आप अपनी कन्वर्सेशन कंटिन्यू रखो. बट मैं पर्सनली भी इसको कभी टच नहीं कर सका बिकॉज ही इज़ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड. बहुत गुस्से वाला है ये टाइगर. नेक्स्ट पैराग्राफ. Why don't you put him somewhere else? Suggested grandfather. That leopard keeps frightening him. I will go and see the superintendent about it. Grandfather उस गार्ड को पूछते हैं कि तुमने इसको यहाँ पे क्यों रखा है. वो जो लेपर्ड है वो उसको कंटिन्यूसली डरा के रखता है. He is afraid of that leopard. और तुमने इसको अलग केज में क्यों नहीं रखा और मैं इसकी बात सुपरिटेंडेंट से करूँगा. Grandfather went in search of the superintendent of the zoo but found that he had gone home early, and so after wandering about the zoo for a little while he returned to Timothy's cage to say goodbye. It was beginning to get dark. Grandfather superintendent को ढूंढने zoo में चला गया और वो उसको जल्दी जल्दी से ढूंढ रहा था. ही वॉज वॉन्डरिंग. वॉन्डरिंग मीन्स इधर उधर घूमना. वो उसको ढूंढने के लिए इधर उधर जा रहा था बट उसको पता चला कि जो सुपरिटेंडेंट है वो घर जल्दी चला गया है. सो इधर उधर घूमने के बाद वो वापस तिमथी के केज में आया और तिमथी को गुड बाय कहा. इट वॉज बिगनिंग टू गेट डार्क मीन्स अंधेरा जो होना वो स्टार्ट हो चुका था. He had been stroking and slapping Timothy's for about
5 minutes when he found another keeper observing him with some alarm. Grandfather recognized him as the keeper who had been there when Timothy had first come to the zoo. वो grandfather continuously Timothy को stroking, slapping, उसको hit कर रहा था, slap कर रहा था about 5 minutes के लिए, वो उसको ऐसे करता रहा. Then उसने observe किया कि वो जो दूसरा keeper है, guard है, उसको continuously observe कर रहा है. ग्रैंडफादर ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया था. ये वही गार्ड है जब तिमोथी को वो फर्स्ट टाइम जू में लेके आए थे. Page number 32, we have read the tiger also enjoyed the company of grandfather. Grandfather was unhappy because the leopard was continuously snarling him. The first zookeeper was surprised on seeing Timothy and grandfather having a conversation. Grandfather wanted to meet superintendent because he wanted a separate cage for his tiger. And the second zookeeper, looking at them, grandfather recognized him. Come to the page number 33. You remember me? Said grandfather. Now, why don't you transfer Timothy to another cage away from this stupid leopard? Grandfather second zookeeper से पूछते हैं कि तुमने मुझे पहचाना? Then why don't you transfer Timothy to another cage? तुम उसको दूसरे केज में क्यों नहीं डालते उस stupid leopard से दूर? But sir, stammered the keeper, it is not your tiger. Stammered means speak with difficulty. I know, said grandfather testily. I realize he is no longer mine, but you might at least take a suggestion or two from me. जो सेकंड जू कीपर है वो ग्रैंडफादर को रिप्लाई करता है बड़े डर के साथ कि इट इज़ नॉट योर टाइगर, ये आपका टाइगर नहीं है. बट ग्रैंडफादर उसको इग्नोर करते हुए बोलता है कि मुझे पता है, आई नो ही इज़ नो लॉन्गर माइन, ये अब मेरा नहीं रहा, बट तुम्हें मुझसे कुछ सजेशन ले लेने चाहिए थे क्योंकि वो टाइगर को जानी तिमोथी को उससे बेहतर जानता है. आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल, said the keeper. He died 2 months ago. Died? exclaimed grandfather. जो सेकंड जू कीपर है वो ग्रैंडफादर को रिप्लाई देता है कि मुझे पता है आपके टाइगर के बारे में, बट वो मर चुका है 2 months ago. ग्रैंडफादर बहुत हैरान होकर पूछते हैं, डाइड, मर गया? Yes sir, of pneumonia. This tiger was trapped in the hills only last month and he is very dangerous. जो सेकंड जू कीपर था वो ग्रैंडफादर को बताता है कि जो आपके वाला टाइगर था वो मर चुका है बिकॉज ऑफ न्यूमोनिया. न्यूमोनिया क्या होता है? एक डिसीज़ जो लंग्स को इफ़ेक्ट करती है जिससे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होती है. सेकंड जू कीपर ग्रैंडफादर को बताता है कि ये वाला जो टाइगर है इसको हम लास्ट मंथ ही हिल्स से लेके आए हैं शिकार करके, एंड ही इज़ वेरी डेंजरस, और ये बहुत डेंजरस है. ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से. द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म विद इंक्रीजिंग relish. Grandfather took what seemed to him an age to withdraw his hand from the cage. With his face near the tiger's, he mumbled, "Good night, Timothy," and giving the keeper a scornful look, walked briskly out of the zoo. ग्रैंडफादर को कीपर की बातें सुन के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उसको क्या कहे, बट द टाइगर वो कॉन्टीन्यूसली ग्रैंडफादर की आर्म को लिकिंग कर रहा था विद इंक्रीजिंग relish. relish मीन्स विद फुल प्लेजर, हैप्पीनेस के साथ उसको लिकिंग कर रहा था उसके आर्म को. ग्रैंडफादर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए, अपनी एज को ध्यान में रखते हुए अपना हाथ केज से बाहर निकाल लिया और वो टाइगर के फेस के पास जाके बोला. मम्बल्ड मीन्स मुंह में कुछ ना कुछ बोलना. उसने कहा, गुड नाइट तिमोथी, और जो सेकंड जू कीपर था उसको टेढ़ी नज़र से देखा और फटाफट से वहाँ से चला गया. ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू मतलब बहुत जल्दी में वो वहाँ से चले गए. तो यहाँ पे स्टोरी का एंड हो जाता है. सो स्टूडेंट्स, हमने इस स्टोरी में क्या पढ़ा कि ग्रैंडफादर हंटिंग एक्सपीडिशन में गए थे और वहाँ पे उन्होंने एक टाइगर कब को देखा और वो उसको घर पे ले आए जिसका नाम उन्होंने तिमोथी रखा.
वो उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करते थे। वहाँ पे उसके फ्रेंड्स बने टोटो द मंकी एंड द मॉन्ग्रेल पपी। शुरू शुरू में जो तिमोथी था वो सबसे बहुत फ्रेंडली था, बट जैसे ही वो 6 मंथ का हुआ तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आने लगे। वो हार्म करने लगा सबको, वो लेस फ्रेंडली हो गया। एंड ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो इसको ज़ू में छोड़ के आएंगे। तो वो लखनऊ के एक ज़ू में तिमोथी को छोड़ आए। आफ्टर 6 मंथ जब ग्रैंडफादर किसी रिलेटिव्स के घर लखनऊ गए तो उनको एक मौका मिल गया कि वो तिमोथी से जाके मिले। तो ग्रैंडफादर ज़ू में सीधा तिमोथी के केज की तरफ चले गए और उस टाइगर के साथ बड़ा फ्रेंडली बिहेवियर शो करने लगे। बट वहाँ पर एक लेपर्ड था जो उस टाइगर को बहुत परेशान करता था। देन ग्रैंडफादर ने उसकी जो कंप्लेंट है वो सुपरिटेंडेंट से करनी चाहिए, बट सुपरिटेंडेंट पहले ही चला गया था। तो ज़ू कीपर बड़े सरप्राइज़ हुए कि ये कैसा रिलेशन है ये। तभी जो सेकंड ज़ू कीपर था उसको ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, क्योंकि जब वो तिमोथी को फर्स्ट टाइम यहाँ पे छोड़ने आए थे तो वही यहाँ पे गार्ड था। तो वो भी ग्रैंडफादर को पहचान लेता है और वो उसको कहता है कि ये जो टाइगर है ये आपका टाइगर तिमोथी नहीं है, बल्कि ये तो हम जंगल से शिकार करके इसको लेके आए हैं। जो आपका तिमोथी था उसको तो निमोनिया हो गया था, तो उसकी डेथ हो चुकी है। और ग्रैंडफादर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो वहाँ से गुड नाइट तिमोथी कह के चले गए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस स्टोरी।